platform, which is Graphy, right? So henceforward, we will be always attending the sessions on Graphy. I hope I'm audible. Let me share the screen. And if you remember what are the concerns, if you want to ask questions, you can simply raise your hand so that I will get the request over here and I will accept. So maybe raise hand you can see at the bottom. So that option you can use whenever you want to ask the questions. Let me share the screen. And please confirm if you can see the screen. So as I said, guys, you can just raise the hand and then you can be on unmute, or you can use the chat option. So I hope the screen is visible to you. And if it is not, please feel free to send a message or just unmute yourself. So how to unmute yourself? I hope you remember, just raise your hand. I will get a request and then I will unmute yourself. Yeah. So, all right. I hope you are able to see the screen. So we will start, but just need any one of your confirmation, guys. Please let me know if you can. Okay, in the chat. Yes. Okay. Yes, but 70-30. The ratio is 70-30. Okay, let me do the full screen. So is it better now? Is it better? Same. Hmm. Maybe there are some some settings or some changes. Moin, try to zoom in with the screen which is like I'm sharing, or try to minimize just by using your arrow. Like if you can, let's say, minimize it, or let's say like I just disable the chat, so the chat option is uh, like removed from your side also, or try to just remove these options, chat and then other options, so you will be getting the full screen right now. Like I have done the same thing. I just click on chat and then you can see there is a full screen in front of me. So I hope you can also do that. All right. Then this plugin which just I'm sharing the whiteboard participants. All right. So Amol is on unmute. Yes, Amol. If you can speak, please feel free to speak, and whatever, like let me know if the screen is visible. Everything is Screen is visible, but that chat window will be मतलब वो close नहीं हो रहा है chat window. ठीक है, विंडो क्लोज नहीं हो रहा है. जस्ट क्लिक ऑन चैट ऑप्शन अगेन. यू कैन सी लाइक मैं अभी स्क्रीन एंटायर स्क्रीन मेरी शो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बॉटम पे मेरे जो 3-4 ऑप्शंस है, पार्टिसिपेंट्स, प्लगइन्स, चैट एंड पोल्स, ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं, ये आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है. ये पार्टिसिपेट और चैट विंडो बंद हो जाएगा ना, तो फुल स्क्रीन दिख जाएगा आपको. बराबर बराबर. तो जस्ट try to do that. I think at the right side now there is option to enable and disable chat. If you can see, at my end I have that option, enable disable chat. So for you also, guys, maybe there is option to enable and disable chat. Just try to do that. When I'm doing it, I can see the full screen on my side. तो आपको भी full screen दिखेगा. Try to do that. No, actually we are not seeing that option. नहीं, हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा. हमारे यहाँ पे डायरेक्टली वो पार्टिसिपेंट और ये चैट विंडो आ रहा है. वो स्क्रीन दिख रही है, वो भी पूरी नहीं दिख रही है ना अमूल? अभी नीचे नहीं. के पार्ट्स कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन का. नहीं दिख आपने लगता है जूम इन किए रहोगे, तो उसको नॉर्मल इस पे करो रेशियो पे, तो कुछ तो भी दिख रहा था पहले. Let me सेटिंग्स के अंदर खाली ऑडियो वीडियो और कनेक्शन का ही ऑप्शन है. हाँ, वही दिख रहा है. ठीक है. एक सेकेंड. आई एम जस्ट ये पार्टिसिपेंट. अभी आपको कुछ फर्क दिखा यहाँ पे? नहीं, खाली डीप लर्न अकेडमी है ना, वो खाली इधर उधर हो रहा है. अभी वो आपने कुछ ये बनाया ना, कर्सर डिजाइन बनाया. करेक्ट. यस. मीनवाइल थोड़ी देर आप स्टॉप कर सकते हो रिकॉर्डिंग, तो फिर वो देखने के लिए तकलीफ हो जाएगी. What is happening? So this part I will discuss again with them. So there are few issues on your side, as you said, as a we can say the attendees. So let me share the whiteboard. And let me write what issues you are facing. So okay, full screen. Okay, and this plugin. So right now I'm sharing the whiteboard. Okay, in this whiteboard, first thing what you are facing is you are attendees are not able to what we can say to see the full screen, right? Actually better than this now, we are not able to hide our chat box completely. Okay, attendees are not attendees. Okay. Attendees. Okay.
not able to hide the chatbot box. Okay, chat box. Okay, these are two issues, and I think if you are able to hide the chat box, this will get solved, right? So Yeah, there is no correct. need. So it will go to the full screen then on our laptop. Okay. All right. So these two things I will share again with this tech support guys. Okay. All right. Let's start with, and maybe in recording you will see recording में आपको कैसे दिखता है वो भी एक अच्छा रहेगा अगर आपको recording if the recording is full screen ना then that will be a beneficial for you. All right. So shall we start for today's? Yes, guys. Yes, we can. All right. So in this deep learn, okay. So I'm sharing this screen. So you are able to see this PPT, right? You can see the PPT now. Yes. All right. All right. So we are in our module in the learning journey. In the learning journey, we are in the module 3. So where we have explored a lot of things regarding the data. So we call it exploratory data analysis using Python, using VS Code, using Python code. Okay. We have explored each and everything like univariate analysis, bivariate analysis. We have seen the outliers. Okay. So as I said, okay, all these things we have already explored. So in the previous recordings, you will get that. And in our last meeting, last session, we discussed about synthetic data, guys. Okay, let me reconfirm that this meeting is being recorded now. Okay. So in our last session, we discussed a lot about synthetic data, the benefit, and like we can say wherever there is need of generating synthetic data, we can generate. This is on demand. Like there was one feedback from the one of the like learner. Okay, if we can cover some basic parts of the Power BI because they are using Power BI in their organization, so that will be good if you can just introduce the Power BI, what it is doing, how to use the Power BI. Okay, so this is on demand session, guys. So today in this session we will be exploring this exploratory data analysis tool, that is nothing but Power BI, which is like we can say provided by Microsoft. All right, this Power BI, and today we are going to learn the initial things, what we can do using Power BI, how we can use their tools efficiently, and all the initial part we will be discussing and we will be exploring on this, guys. So before moving to that, as I said, okay, this is the module EDA exploratory data analysis. So I hope in your whatever we have learned in terms of data analysis, we have seen the code level. We can say the background, how it works on the data. Okay, we have explored the pre-processing. We have explored even feature engineering, then data cleaning, data pre-processing, each and everything, guys. So can you please let me know what is your idea about Power BI? Okay, if you are familiar about Power BI, so what are you aware about? Did you use this tool earlier? So just guys, this is a kickstart. Can you please tell me what is Power BI? Yes. One thing I know about the Power BI that the large files that we are not able to open in Excel, so Okay. that we can explore here, and Okay. we can also draw the graphs. Because in Alright. last lecture also you have seen that the graphs you were plotting. So that is like what you can say. Just on a button we can click that and create the graphs in Power BI. Okay. Yes, that is correct. So what is different between the one which we have learned so far, like using our code level things, and this one, what we are going to explore using Power BI? So what is the main difference, guys? Maybe just a UI interface. UI interface. That is, yes, that is correct. So the main difference we can say, because see, Power BI is mostly used by those we can say at a higher level. We can say those employees which are like taking or deciding or taking some business level decisions, or we can say data driven decisions. We can say D3, data driven decision. So but even there are some Power BI we can say developers, we can say developers, or there are some employees who only work on Power BI, and they are like as I said, business analyst. जैसे मैंने बोला था आपको कि आफ्टर ईडीए ना, इफ यू हैव सफिशिएंट एक्सरसाइज ऑन दिस, आप बीए बिजनेस एनालिस्ट के लिए you are capable, you are able to apply for that role. So let's say if they are asking कि do you have hands on Power BI, ठीक है, तो उस केस में फिर don't say no, ठीक है, because एट द एंड ना गाइस, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो दिखाऊंगा पावर बीआई क्या क्या करता है, क्या कर सकता है, वो सब चीजें आप कोडिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू, यूजिंग आवर VS कोड, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू. ठीक है, so let's dive into this we can say introductory and basic things about Power BI. So as I said, Power BI is
provided, or we can say supported, or the tool given by Microsoft. So let me open the browser. Here I created this webinar on Graphy just because Zoom subscription now, guys, it is ended now. So then we are shifted to Graphy again, and henceforward we will be shifting to Graphy. Okay, there is one more announcement. All whatever we are going to do, the session materials, recordings, even like text, exams, certification, you will be finding here, guys. And I am creating one course for you. Just make sure कि आप उसको enroll करोगे for your batch. Okay, आप यहाँ पे जाके course को enroll करोगे, और enroll करने के बाद don't worry about this fees. It will not ask you for fees. Just go and log in and enroll here. It will not ask any fee. This is just for display. But this course, इस course के लिए आपको enroll नहीं करना है. मैं आपके लिए एक another course बनाऊंगा, और आपको वैसा मैं WhatsApp पे मैसेज भी डाल दूंगा. Just go open that link, register and log in there. Okay. So as I said कि आपको यहाँ से आगे का जो भी मटेरियल है वो G ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे मैं लिंक नहीं दूंगा आपको. सीधे आपको लॉगिन करना होगा और आपको मिल जाएगा पूरा मटेरियल जो भी है सेशन का. ठीक है. हेंस ऑनवर्ड हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे. ठीक है. दिस वाज जस्ट अनाउंसमेंट. तो लेट्स मूव. तो व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स से अगर आपको पावर बीआई यूज करना है, ठीक है, तो गो टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट पावर बीआई प्लेटफॉर्म. ओके, पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप. ठीक है. तो जस्ट गो गेट स्टार्टेड एंड डाउनलोड इट फॉर योर डेस्कटॉप वर्जन. It started. Try for free. You have to just like, because you will be trying to use it for free now. Just go enter your details, and you will be getting the option to download the Power BI. Okay. So that step I have already done. You can also go and do it from your end. You will be downloading the Power BI for desktop. Okay. There are some products which are Power BI. As I said, Power BI for desktop, Power Pro, and this Pro and Premium. So these are also products which are available. You can try Pro and Premium also. But after that, this is like it is this started like for the organization level. If you are using for organization level ना, तो आपको फिर ये देना पड़ेगा उसके चार्जेस. तो this is इसकी जो कॉस्टिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. दैट्स व्हाई अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो दे डिसाइड के शैल बी गो विद पावर बीआई, बिकॉज इसका जो कॉस्टिंग वगैरह, कॉस्ट एफिशिएंसी जो हम बोलते हैं, तो गाइस दैट्स व्हाई दे हायर सम सच काइंड ऑफ वी कैन से बिजनेस एनालिस्ट जिनको पाइथन का नॉलेज है, और जो ईडीए में पाइथन यूज करके हर एक प्रकार का रिपोर्ट उनको जनरेट कर दे. ठीक है. तो यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ पे बटन पे आप अगर क्लिक करते हो तो यू विल बी डाउनलोडिंग द पावर बीआई एप्लीकेशन, जो एज आई सेड के इट इज ऑलरेडी विथ मी. सो वी विल डायरेक्टली गो देयर. बट वंस यू डाउनलोड तो आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग आएगा. उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलेशन आपको करना है, तो आपके डेस्कटॉप पे पावर बीआई आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो एज आई सेड कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, एंड पिन टू टास्क बार. सो आई एम जस्ट ओपनिंग इट. Okay, I'm just opening the Power BI application. Generally फिर अगर देखा जाए तो जैसे अर्लियर भी मैंने बोला था कि this is the UI actually. Okay, whatever in the background, whatever runs in the background ना, वो सब है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, देखा है गाइस. ठीक है. ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर किया है, हमने देखा है वो सब चीजें. तो let's start with a very we can say the like basic things. So let me open. या यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन भी था अभी. जस्ट लेट मी होम. हाँ, एक्सेल बुक. ठीक है. देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है आपको. अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो यू कैन सी दिस ऑप्शंस. ओके. सो फॉर टुडेज लेट्स गो विद द अवेलेबल डेटा व्हिच वी हैव. यू कैन देयर आर 3 सेक्शंस गाइस. 3 सेक्शंस होते हैं. ओके. देयर आर 3 सेक्शंस. यहाँ पे स्क्रीन का जैसे जूम पे मिलता था वो नहीं है, तो डोंट वरी. आई होप कि मेरी स्क्रीन भी दिख रही है आपको, और मैंने एक जैसे एक स्क्रीनशॉट वाला एक एप्लीकेशन है उसको मैंने लिया. I hope that is visible. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 3 very important sections. तो ये एक सेक्शन है. Yeah, please confirm this highlighter. You can see now, which I have highlighted in red. Yes, guys, you can see that, right? Please confirm. Yes. Yes. Okay. Thanks for the confirmation. So 3 बहुत important panel होते हैं यहाँ पे, which are very important if you are using Power BI ना. ये है जो दिस वन वी कैन कॉल इट एज अ रिबन. मतलब यहाँ पे जो भी आपको मिलता है सब यूटिलाइजेशन, इंपोर्ट करने के लिए. ठीक है. डेटा हैंडलिंग, ऑपरेशन कैसे करते हो, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो. सी इफ यू रिमेंबर, मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको बताया था. व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव लर्न दिस. इवन इफ यू फॉरगॉट, जस्ट गो एंड सी आवर अर्लियर रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस. ठीक है. व्हाट आवर सेशंस. तो ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पे होता है. ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, इन शॉर्ट में बता दो आपको. अगर कोई ब्लैंक्स वैल्यू है, क्लीनिंग है डेटा का ना, ट्रांसफॉर्म करना है, वी कैन डू दैट हियर आल्सो. And as this second panel is for visualization. जो भी आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, जो भी कुछ करोगे, each and everything is handled over here इस पैनल में. और ये थर्ड जो पैनल है,
that is nothing but the tools which are provided for visualization. यहाँ पे जो रिपोर्टिंग जनरेट आप करने वाले हो उसके लिए हेलो अमोल को अनम्यूट करो ना, वो कुछ बोलना चाहता है। अमोल को अनम्यूट करूँ? हाँ, वो कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा उसका। Okay, maybe I have to just get rid of this. Okay, 1 second. मैं इसको स्किप करता हूँ, ये चला जाएगा जो भी मैंने अभी स्केच किया था, ठीक है? स्किप, ठीक है, चला गया। एंड नाउ अमोल, सो पार्टिसिपेंट्स, वेयर इज अमोल? अमोल, आपने रेज किया क्या, हैंड रेज? इफ यू हैव रेज देन ओनली आई विल गेट दैट ऑप्शन टू अनम्यूट यू। ओके, यस, प्लीज कंफर्म। आई हैव यस, आप अनम्यूट होके बात कर सकते हो, प्लीज कंफर्म। ठीक है, देयर इज गौरव आल्सो। मेरे को ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। कौन सा? ये माइक वाला नहीं ना, हैंड रेज का जो हाथ है ना, बस उसको आप रेज कीजिए तो आपको ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सबने करना चाहिए मीटिंग ज्वाइन करने के बाद, तो ही वो सब कुछ बोल पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। सो यू जस्ट गो एंड रेज योर हैंड, आई विल एक्सेप्ट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पावर बीआई का है वो फ्री वर्जन है या कोई बिजनेस वर्जन या कोई कंपनी अलाउ करती है? नो नो, यू कैन जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, आप microsoft.com पे जाओ, ये फ्री वर्जन इन द सेंस, ये देखो देयर आर सो मेनी मोर एप्लीकेशंस भी आप यूज कर सकते हो। बट जैसे ठीक है, एट द एंड जब मैं आपको बोलूंगा कि मैं जो कुछ बनाने वाला हूँ, मैं आपके साथ इसको शेयर करने जाऊंगा। जैसे मैं शेयर करने का ऑप्शन बोलूंगा ना, वो बोलेगा कि भाई तू पैसा पे कर, फिर यू विल बी एबल टू शेयर दिस रिपोर्ट। ओके, हम लोग खाली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन, या देखो थोड़ा सा फ्री वर्जन में भी वहाँ पे, जैसे मैंने बोला प्रो और प्रीमियम करके जो वर्जन है ना, वहाँ पे यू कैन ट्राई फॉर शेयरिंग, ट्रायल पीरियड जिसको बोलते हैं ना। बट अगर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इसको परचेस किया है ना पेड वर्जन, देन यू कैन शेयर यू इवन यहाँ पे जो गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस ना, वो ऑप्शन आपके लिए बहुत यूजफुल भी हो जाते हैं। कभी कभी फ्री वर्जन में ये सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई व्हिच इज वेरी इजीली अवेलेबल फॉर अस। आई एम जस्ट शोइंग दैट टू यू, एंड दैट इज एक्सेल। तो बट दिस थिंग्स यू कैन डील विद गाइस, ये आप ट्राई करो, डील करो, जो भी करो। बट जो इनिशियल और बिगिनर लेवल पे जो भी बताना है ना, मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे मतलब इसका कैसे यूज होता है। ज्यादातर ईडीए है वो ये पावर बीआई के थ्रू ही उनका डेटा दिखाते हैं, या किसी मतलब जो हम लोग को डेटा किसी को प्रिपेयर करना है वो पावर बीआई में ही होता है या किसी और टूल में भी होता है? मतलब वो जैसे टैबलू है, ठीक है, तो ऑप्शन है। देखो अगर आपको बहुत अच्छे से मतलब बहुत सही और आपका कस्टमाइज रिपोर्ट बनाना है ना, तो हमेशा याद रखिए कि डेवलपर का जो टूल होता है, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने जुपिटर वीएस कोड देखा है, जुपिटर नोटबुक में हमने रिपोर्ट्स जनरेट किए। तो यूजिंग कोड यू कैन कस्टमाइज योर रिपोर्ट, जो भी आपका विजुअलाइजेशन है आपके हिसाब से आप प्रॉपर सब चीज कर सकते हो। बट दिस इज यूआई, ओके, दिस इज यूआई। बट एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स है इस यूआई में, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, वो मैं आपको ये कोपायलट का आइकन आया है, मतलब ये मतलब क्या है कोपायलट का? ठीक है, कोपायलट पावर बीआई में ही आता है क्या? यस यस, एक्चुअली दिस इज बिकॉज दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो कोपायलट भी इसको उसके साथ एक एडिशनल आपका हेल्प करके हेल्प, जैसे वीएस कोड में आपने देखा था मुझे कोपायलट का हेल्प हो रहा था, वैसे इसका भी आपका हेल्प हो जाएगा आपको ना अंडरस्टैंड करने में कोपायलट का जो भी, जैसे वहां पे मुझे कोड पहले से ही लिख के वो दिखा देता था, तो उस टाइप में। ऑलराइट, बट ट्राई वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, microsoft.com ये पावर प्रोडक्ट में जाने का, प्रोडक्ट में जो डेस्कटॉप है उसको डालो, डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो, ठीक है, दैट इज स्टार्ट फ्री, जो फ्री वाला वर्जन है, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस गाइस। बिकॉज इसका भी बहुत ऐड आ रहा है, मतलब ईडीए मशीन लर्निंग विद पावर बीआई एंड टेबल यू, इसका बहुत ऐड दिखता है। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट एज आई सेड कि अगर वेरी बेसिक और वेरी लाइक, अगर इस देखो मैं अभी यहाँ पे जो भी करूंगा उसके पीछे क्या हो रहा है यू डोंट नो, मतलब जो इसको यूज कर रहा है उसके पीछे कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं उनको कुछ नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बट यू नो इट बेटर, क्योंकि हमने ये कोडिंग के थ्रू कर चुके हैं सब चीजें, तो आपको पता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, राइट। एंड जैसे मैंने बोला हु यूज दिस पावर बीआई टूल, तो भाई वहां पे जैसे मैंने बोला कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जिनको हायर लेवल के रिपोर्ट्स जनरेट करके शेयर करने उनके मैनेजर के साथ, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको कॉस्ट से कुछ इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, दे यूज दिस टूल विच इज, जैसे कि देखो टूल बना है मतलब क्या, जो भी हमने अभी तक जो छोटे छोटे कोड और जो भी फंक्शनैलिटी सीखी है ना, उन सब का इंटीग्रेशन करके एक टूल बना है माइक्रोसॉफ्ट कि ये सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कोडिंग की कुछ जरूरत नहीं। तो दोज हु आर नॉट डूइंग कोडिंग एट ऑल बट are like using this tool, they are able to generate the reports as per their requirements, ठीक है, और उसका हम एक अभी यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो एज आई सेड ये जो टूल, ये जो 3 जो सेक्शन मैंने बताए, पहला वाला जो है रिबन, okay, this is very useful for handling the data. The here what this visualization tool is, it provides all the ways of visualization। यहाँ पे सब ग्राफ आपको मिलेंगे, डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे, आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ट्राई विद दिस। यहाँ पे जाके आपको सिर्फ जो कलर और जो यहाँ का लुक एंड फील है ना, यू कैन चेंज दैट यूजिंग फॉर्मेट पेज, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, नो वरीज। तो
जैसे कि मेरा ये एक पार्ट, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पैनल दिख रहा है ना डेटा, यहाँ पे आपको डेटा दिखना शुरू हो जाता है जैसे हम डेटा को इंपोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं। एंड दिस व्हाइट सेक्शन व्हाट यू आर सी, यहाँ पे आपका एक्चुअल रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपको दिखता है। ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट गाइस, आई विल शो यू हाउ दिस इज बीइंग यूज्ड। ओके, तो मैं डेटा पैनल को अभी हाइड कर देता हूँ, विजुअलाइजेशन को भी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको एक बड़ा यहाँ पे ये यूआई दिखे। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट इंपोर्टिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखो एक्स्ट्रा डेटा है, आई विल शो दिस डेटा व्हाट इज दिस एंड ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्टिंग, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, जो डेटा था मैंने उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद नेविगेटर खुला। ठीक है, दिस इज न्यू डेटा। ऑलराइट, 1 सेकंड, आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट। ठीक है, बिकॉज सैंपल डेटा मैं आपको पहले सैंपल डेटा का दिखाता हूँ। ये सैंपल डेटा, इससे मतलब न्यूमेरिक्स है, काफी सारी अच्छी चीजें हैं, तो इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ सैंपल डेटा। ये इजीली अंडरस्टैंड होगा इसलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बैकएंड में रीड सीएसवी करता रहेगा, रीड एक्सेल करता करेक्ट, रीड एक्सेल करता है। यस, बैकएंड जैसे मैंने ओपन किया, क्लिक किया तो बैकएंड में ऑपरेशन चला, रीड एक्सेल कर दिया इसने। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे सब डेटा दिख रहा है, देखो जो हमको डेटा फ्रेम में दिखता है। ठीक है, ईच एंड एवरी डेटा वी आर सी। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, देखो भाई, हाँ मैंने इसको डिसेबल किया तो ये ऑप्शन डिसेबल हो गया। अगर आप ऐसे कुछ करोगे और आप बोलोगे यार मैंने डेटा इंपोर्ट किया, कुछ नहीं दिख रहा, क्या हो गया, ये यूज नहीं कर पा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ये क्यों नहीं, बिकॉज देयर आर सम स्टेप्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल वाला। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या कि जो भी लेट्स से अगर इसमें कुछ एम्प्टी वैल्यूज है, ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज है या कुछ क्लीनिंग करना है, तो जो भी प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बट यहाँ पे यू कैन सी आवर डेटा लुक्स गुड एंड दैट्स व्हाई मैंने ये डेटा को लिया। ठीक है, बट एज आई सेड गाइस, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, डेटा में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है ना, डेटा ठीक से नहीं है, वो अच्छे से करता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको लोड करूंगा। लोड, जैसे मैंने इसको लोड किया, ठीक है, there are pending changes in your queries that haven't been applied. Let me discard this message because at this moment I don't think कि ये मेरे को कुछ impact करेगा। I'm just closing this because I'm using this free version ना, तो मे बी वो ऐसा कुछ बताएगा, चेंजेस वगैरह जो भी। ठीक है, देखो गाइस, जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया तो आपको कुछ चेंज दिखा, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, क्या हुआ, कोई बताएगा क्या चेंज हुआ इसमें? यस गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चेंज। जब भी मैंने इंपोर्ट किया डेटा को तो यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ, व्हाट इज दैट चेंज? यस, एनीवन, एनी ट्राई? आई होप आई एम ऑडिबल ना, बिकॉज़ आई एम ऑडिबल। हां, कंफर्मिंग फ्रॉम योर साइड। यस, ऑडिबल। ठीक है, तो व्हाट इज वो हट गया ना, इंपोर्ट हो गया तो ठीक है, वो हट गया। बट फिर ठीक है, अभी ये होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने जैसे बोला, देखो यहाँ पे एक डेटा का मैंने बोला था कि जो भी डेटा आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा। ठीक है, चलो डेटा दिख रहा है, तो लेट मी इनेबल विजुअलाइजेशन एंड डेटा आल्सो। ठीक है, नाउ इस डेटा में जो हमने इंपोर्ट किया था वो सब है, और यू कैन सी अमाउंट है, बॉक्सेस शिफ्ट, कंट्री, डेट है, प्रोडक्ट एंड सेल पर्सन। तो पहले तो ये डेटा को समझ लेते हैं। तो मैंने आपको डेटा दिखाया भी था, और यहाँ पे भी लेट मी ओपन दैट डेटा अगेन। तो यहाँ से लेट मी ओपन डी कोलन में, दिस इज आवर सैंपल डेटा। ठीक है, तो क्या क्या है, लेट मी शो इट। एंड इस डेटा को हम अच्छे से कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट आई वांटेड टू शो। ठीक है, तो ये डेटा है गाइस, डेटा अपने पास जो भी है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, अमाउंट है, बॉक्स शिफ्ट, तो उस प्रोडक्ट के मतलब देखो चोको चॉकलेट्स के प्रोडक्ट्स है, मैंने नेट से डाउनलोड किया था। ठीक है, कंट्री वाइज प्रोडक्ट्स का यहाँ पे सेल दिख रहा है आपको, वो सेल पर्सन है, उसने कितना सेल किया। ठीक है, वैन इंडिया में उसका कितना सेल हुआ और क्या उसने सेल किया था, कौन से तारीख को कितना उसने रेवेन्यू जनरेट किया, एंड बॉक्स शिप कितने शिप किए, ये सब डेटा है। दिस इज ये अराउंड 1100 डेटा है। ठीक है, इट्स ओके। नाउ ये डेटा था, अभी इसको हम प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे। मतलब कैसे, अगर कोई बोलेगा कि भाई किस सेल्स पर्सन ने कितने कंट्री वाइज कितना ज्यादा सेल किया, कितना कम सेल किया, कौन से डेट पे ज्यादा सेल हुआ, तो मतलब मंथ वाइज सेल देख सकते हैं क्या हम, वो सब चीजें। ठीक है, ओके, कितने बॉक्स शिफ्ट हुए, ये सब हमको अगर प्रॉपरली देखना है तो लेट्स गो हियर। ठीक है, लेट्स गो टू दिस पार्ट। एंड तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो व्हेन आई क्लिक, मैं यहाँ पे एक कॉलम चार्ट लेता हूं। जैसे मैं कॉलम चार्ट पे लिया, देखो यहाँ पे एक कॉलम चार्ट आ गया। ठीक है, बराबर। तो इसको मैं यहाँ पे आराम से लेके आता हूँ, आपको दिखने के लिए सेंटर में लेके आता हूँ। एंड आई एम जस्ट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। आई होप दिस देखो मैंने इस टूल पे क्लिक किया विजुअलाइजेशन के, और वो है अपना कॉलम चार्ट। मैं कॉलम चार्ट यहाँ पे लेके आया, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई कॉलम तो हमने उधर भी देखे थे, जो अपन कोडिंग देख रहे थे। अभी यू कैन सी हियर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यू कैन सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देयर। अगर मैं ऐसा करूंगा
कि लेट्स डू वन थिंग, मैं करता हूँ बॉक्स शिफ्ट, ठीक है, बॉक्स शिफ्ट को मैं करता हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, बॉक्स शिफ्ट आ गया अपना एक्स एक्सिस पे, और मैं बोलता हूँ सेल्स पर्सन या लेट्स से प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलता हूँ, मैं प्रोडक्ट को बोलूंगा मैं वाई एक्सिस पे। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, या ऐसा कुछ तो स्क्रिपी ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रिपी ग्राफ, तो इससे पता नहीं चल रहा है भाई क्या है, मतलब ये बोल रहा है भाई कितने प्रोडक्ट शिप, कितने बॉक्स शिफ्ट हुए कि काउंट फॉर प्रोडक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, आप एक काम करो, एक्स और वाई एक्सिस में शिफ्टिंग करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉक्स शिफ्ट यहाँ से हटा देता हूँ और ये काउंट प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, और जो बॉक्स शिफ्ट है ना, मैं इसको देखो अभी यहाँ पे आपको ठीक से दिखना शुरू हो गया। तो ये आप ध्यान में रखना गाइस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अंडरस्टैंडेबल जो भी आपको लगता है उस हिसाब से, तो डोंट वरी कि भाई उस टाइम पे इसलिए हो रहा था बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो एक्स एक्सिस में ज्यादा डेटा था, एज ये सम ज्यादा था, इसलिए आपको स्क्रिपी दिख रहा था, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज आप कर सकते हो, इसमें स्विचिंग और शिफ्टिंग कर सकते हो। मैंने क्या किया, लेट मी अगेन, ये मैं डिसेबल करता हूँ फिर से। क्या किया था मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सिर्फ क्लिक किया और उसको ड्रैग करके इधर लेके आया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, मैंने क्या किया था, ठीक है, और आप भी इसको करोगे। तो लेट्स डू द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बोलूंगा इसको अपन करते हैं सेल्स पर्सन एंड लेट्स से अमाउंट है, कंट्री है, ठीक है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट का देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया, सेल्स पर्सन मैंने क्लिक किया, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट प्रोडक्ट को मैं देखो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट ऑलरेडी विच इज ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेल्स पर्सन लेट मी ड्रैग इट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया, तो आपको क्या दिख रहा है ये डेटा में, आप व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो लेट मी मतलब आप बताओ कि आपके अंडरस्टैंड, लेट मी जूम इट, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये जो फिल्टर्स है, फिल्टर्स आई एम जस्ट रिमूविंग, ठीक है, और मैं इसको जूम करता हूँ, इसको भी मैं हाइड करता हूँ, इसको भी मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो बड़ा कैसे करेंगे, जस्ट ड्रैग कीजिए आप, ठीक है, इसको एक्सपांड कीजिए, यू कैन प्ले विद दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काउंट ऑफ सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन के काउंट है, और यू कैन सी द कलरिंग ऑल्सो गाइस, आपको क्या दिख रहा है, कलरिंग दिख रहा है, बराबर। तो कलरिंग में क्या है, एंड्रिया से लेके, ओके, एंड्रिया से लेके ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन विच वी हैव, उनके बारे में। जैसे मैं देखो एंड्रिया पे क्लिक किया तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एंड्रिया का डेटा दिख रहा है, एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट्स, ठीक है, यू कैन सी, यहाँ पे माउस ओवर कीजिए, काउंट ऑफ सेल्स, एंड्रिया ने कितने सेल किए थे, 4 सेल किए थे, प्रोडक्ट कितना, जो भी प्रोडक्ट था उसका नाम है 50%, ये उसका नाम ही है प्रोडक्ट का, क्या 50% डार्क बाइट्स, उसका प्रोडक्ट का, उसने 4 सेल किए थे। तो आप यहाँ पे ये बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप इंटरएक्टिव ज्यादा हो सकते हो। पावर बीआई में बेनिफिट क्या है, इंटरएक्शन, दिस इज वेरी इंटरएक्टिव, एंड दिस द रीजन कि आप देखो हर एक चीज के लिए फिर ग्रुप बाय करना पड़ता। अभी यहाँ पे अगर कोड लिखते तो हमको क्या करना पड़ता, ग्रुप बाय जो क्वेरी अपनी वो लिखनी पड़ती सेल्स पर्सन पे, और उस जो भी सेल्स पर्सन का नाम है डॉटी, ठीक है, डॉटी लिखता तो आपको इसका ये सब डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता। तो ये जो चीजें है ना, इंटरएक्टिवनेस, ये बहुत एफिशिएंटली हैंडल की है पावर बीआई ने, ठीक है। उससे आपको बहुत, मतलब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई इसको आप कितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, कितना एफिशिएंटली आप इसको यूज कर सकते हो पावर बीआई, ठीक है। सी यहाँ पे आप देखो, पहले यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये सब आ गए, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही देखना है, उसी इसका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में, कैमिला का आप देख रहे हो अभी, ठीक है, सेल्स पर्सन वैन है, वैन का देख रहे हैं आप डिटेल्स, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा, कितने काउंट सेल हुए थे, ओके। देन यू कैन से कौन सा प्रोडक्ट था। सो ये हो गया आपका बाइनरी, और वी कैन से टू बाइनरी जो हमने देखा था ना, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, तो उसमें बाइवेरिएट का एनालिसिस यू कैन डू दैट। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, अभी जब भी ये करोगे तो डेटा लो, और यहाँ पे इस पे जाके आपको क्या करना है, हर एक एक्स और वाई एक्सिस पे ये आपके कॉलम्स रिप्लेस करके आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एंड हाउ इट इज शोइंग, ओके। एंड आल्सो ट्राई लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, समराइज, देखो एनालाइज, अगर एनालाइज करोगे तो एनालिसिस में आपको पूरा एनालिसिस इसका दिख जाएगा, ठीक है, इसका एनालिसिस आपको मिलेगा, एंड इवन दिस इज जनरेटेड बाय एआई गाइस, ठीक है। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे ही पूरे ग्राफ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा ग्राफ दिख जाएगा, एंड माउस ओवर पे आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल ग्राफ के लिए। तो अभी एक काम करेंगे, हम थोड़ा है ना डबल ग्राफ के लिए जाएंगे, डबल ग्राफ, ठीक है। बट आई होप कि यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पता चला, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है गाइस, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू द डबल ग्राफ, हम डबल ग्राफ के इंटरएक्टिव में जाने वाले हैं। तो दो ग्राफ को कैसे इंटरएक्टिव देख पाते हैं, और एक कोई तो एक अच्छा सा रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट
ये जो पैनल है इनको मैं ओपन करता हूँ, और चलो इसको मैं मुझे अभी इतनी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यू कैन ऑल्सो, बिकॉज होता क्या है ना, आप भी आपके साइड से ट्राई तो करोगे, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि यार इससे आगे कौन सी स्टेप लेनी हो आपको पता नहीं चलता। एंड दैट्स व्हाई आवर मेन पर्पस इज, जो भी आपको मैं ये एकदम फास्ट वे से जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये आप डायरेक्ट करोगे तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो यहाँ पे पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। देखो अगर मैं अलग से पेज करूंगा तो यहाँ पे ये पेज में मैंने जो काम किया, चलो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट, यस डिलीट, मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी, मैं नया पेज पे करूंगा जो भी है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी एक थोड़ा जैसे मैंने बोला डबल ग्राफ वाला चीज करते हैं, तो मैं लूंगा कंट्री, और कंट्री में लेट्स से ये वाला चीज फिर से, और उसके बाद हम मतलब जैसे ये जो किया ना, क्या इसको हम बोलते हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट और ये वाला चार्ट दोनों को एक साथ कैसे इंटरएक्टिवनेस बढ़ता है वो देखेंगे दोनों का एक साथ, ठीक है, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग गाइस। ऑलराइट, दिस इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो चलो मुझे फिर से बताओ, मैंने कंट्री लिया है अभी, ठीक है, कंट्री लिया है, तो कंट्री को मैंने एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे कंट्री वाइज मुझे देखना है कि कितने बॉक्सेस शिफ्ट हुए कंट्री वाइज, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो आ गया कंट्री वाइज ये बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो सेंटर में, इफ यू कंट्री वाइज मैं देख रहा हूँ भाई कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बॉक्स शिफ्ट हुए, मोर देन 30 के। आई होप आई एम ऑडिबल। यस यस, ओके, तो कंट्री वाइज आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट इज द शिफ्टिंग एंड मेरे बॉक्सेस वगैरह कैसे शिफ्ट हुए, कितने बॉक्सेस गए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका बिहेवियर, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे सॉर्टिंग ऑर्डर में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका शिफ्टिंग ज्यादा हुआ था कंट्री वाइज, कनाडा में उसके बाद, ठीक है। अगर इस पे माउस ओवर करोगे तो आपको टोटल नंबर वगैरह सब दिख जाएगा, ये दिख रहा है आपको 30,000, बिकॉज या 32,000 शिफ्टिंग हुए, 32,647, ठीक है। मुझे पूरा ग्राफ देखना है तो मैं पूरा ग्राफ, अभी जैसे मैंने बोला ये तो आपको पता चल गया भाई जो भी है, तो ये इससे आप ये सब चीजें एक्सप्लोर करो। नाउ लेट मी शो यू द इंटरेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, ठीक है, दो ग्राफ की इंटरेक्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ले लिया साइड में, ठीक है, साइड में ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, और एक काम करते, ये जो ब्लू कलर आपको दिखता है ना, चलो अगर आपको ये इसका दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का दिखाता हूँ। तो ब्लू कलर आपको अगर चेंज करना है तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो इनटू विजुअलाइजेशन, ठीक है, फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको मिलेगा, इसमें जाओ, फॉर्मेट में जाओ, और आपको जो एक्सिस में, लेजेंड में, जनरल में, डेटा फॉर्मेट एंड विजुअल्स में, जैसे डेटा लेबल्स, आप डेटा लेबल्स की कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस ग्राफ के अगर आपको चेंज करना है विजुअल्स, तो आप यहाँ पे जाके देखो, यू कैन चेंज द टाइटल का विजुअल, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल का कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, ये सब चीजें यू कैन डू दैट, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे मैंने किया, देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ विजुअल्स यू कैन चेंज, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, जैसे कॉलम वाइज अगर आपको, ठीक है, एक काम करता हूँ, ये विजुअल्स आ रहे हैं ना, मैं इस पे क्लिक किया, और अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर अगर सर्च करता हूँ, देखो कलर का आपको आ गया ऑप्शन, टाइटल का कलर, डिवाइडर का कलर, विजुअल्स, शैडो, ये सब आप यूज कर सकते हो इसका चेंज करने में, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे आपका कॉलम्स का जो कलर है वो ब्लू है, तो लेट्स से अगर आपको डिफरेंट कलर लेना है, ब्लैक लेना है, देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। मतलब अगर जो आपको इसके साथ प्ले करना है, चलो मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे कलर जो भी है लेट्स से वायलेट वाला, तो ये वायलेट, ठीक है। तो दिस इज योर चॉइस गाइस, आप जस्ट जाओ, विजुअल फॉर्मेटिंग वगैरह सब चीजें करो, ठीक है, ठीक है। इसके लिए ये हो गया। अभी डबल ग्राफ का देखते हैं, ठीक है। तो डबल इसमें अगर देखना है आपको, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, डबल अगर लेना है तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट वन मोर, वी कैन से विजुअल्स। तो आप फिर से यहाँ पे आ जाइए विजुअलाइजेशन पे, ठीक है, विजुअलाइजेशन में आ गए, ये हम फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, इस साइड में आइए, ठीक है। जैसे आप इस साइड में आओगे तो इसको उठा के इधर लेके आइए, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये 1 सेकेंड, ये देखो ओवरराइट हो रहा है। अगर आपको इसको लेना है तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, आ गया, ठीक है। हम अभी जो देख रहे हो इंटरैक्शन देख रहे हैं बिटवीन टू ग्राफ्स, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं है, तो इसमें क्या इंटरैक्शन देखेंगे, राइट। तो फिर इसके लिए हमको इंटरैक्शन के लिए अभी कॉलम ऐड करने हैं, राइट। तो कौन से लेंगे, एक काम करते हैं, फिर अपने को एक रिपोर्ट बनाना है जो मीनिंगफुल रिपोर्ट है। तो अगर हम ये वाई एक्सिस में अगर प्रोडक्ट लेके आएंगे, प्रोडक्ट, तो मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ के लिए मैं वाई एक्सिस में प्रोडक्ट लेके आता हूँ, ठीक है। मैं प्रोडक्ट लेके आया वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंट्री वाइज बॉक्स शिप था, मैं प्रोडक्ट वाइज बॉक्स शिप लेता हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बॉक्स शिप लेके आता। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट वाइज बॉक्स शिप, जो भी है प्रोडक्ट वाइज, जो भी कंट्री वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज, दोनों का हमको अभी देखना है कॉम्बिनेशन। तो आप देखो इंटरेक्टिव, यहाँ पे इंटरेक्शन देख रहे हो,
एक सेकंड ना, मेरे को ये थोड़ा बड़ा करने दो, मे बी आपके अगर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आई होप दिस इज नाउ विजिबल इन सम एक्सटेंट, प्रॉपर एक्सटेंट में ये विजिबल हो रहा है आपको। यस, तो यहाँ पे इंटरेक्शन देखिए क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो इफ आई से कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट कितने गए थे, देखो ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है और उनका सम ऑफ बॉक्स शिफ्ट हुए। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में ये जो डार्क बाइट्स है वो कितने शिफ्ट हुए थे, 3182। यूके में देखना है मुझे तो यूके में ये फिगर है गाइस, यूएसए में देखना है तो यूएसए में ये चेंज है, इंडिया में देखना है तो सी यू कैन चेंज द स्पाइसी स्पेशल, इंडिया में ज्यादा बिक्री हुई थी स्पाइसी स्पेशल की। इसके ऑन क्लिक पे वो चेंज कैसे हुआ, वो एक्शन लिखा है क्या? सॉरी, मतलब इंडिया और यूएसए, तो यूएसए में जितना भी चेंजेस हुए वो मतलब ऑन क्लिक ये है क्या? हाँ ये जो इवेंट है ना, मतलब देखो हाँ, मैं बताता हूँ आपको। यस, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? ये जो इवेंट तो हमने नहीं लिखा ना। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ ना, देखो ये एक एंटायर प्रोडक्ट है, पावर बीआई का एंटायर प्रोडक्ट है, बराबर। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये सब क्लिक इवेंट है ना, जब भी हम इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सब क्लिक इवेंट है जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर इफ यू नो जावास्क्रिप्ट, अगर आपको पता है, इसीलिए मैंने पूछा कि वो Correct, इवेंट correct. लिखा नहीं तो ऑन क्लिक इवेंट पे वो चेंज कैसे हो रहा है? करेक्ट। तो ये है फिर यूआई का यही एक अच्छा, वी कैन से गुड एडवांटेज ऑफ यूआई क्या है कि आपको इंटरेक्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन रिलेट, यू कैन सी द इंटरेक्शन ना। तो ये देखो यहाँ पे क्लिक इवेंट होती है, अगर जावास्क्रिप्ट पता है तो ऑन क्लिक रिफ्लेक्ट दिस। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे क्या लिखा होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वॉट एवर दिस वी कैन से एज अ वेरिएबल इज अगेंस्ट सम ऑफ बॉक्सेस एंड कंट्री। तो इनका लेके इस पे ग्रुप बाय करो, दूसरे वाले पे उसका इंटरेक्शन जो इंटरेक्टिवनेस है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक दिस, ये अगर आपको एक बार हैंडी हो गया ना, तो ये हैंडी होने के बाद आपको बहुत इसका मतलब इंटरेक्शन, मतलब ये सब जैसे मैं बोल रहा हूँ, नॉन डेवलपर्स और वो सब लोग जिनको इसका मतलब ये एक दिन में तो पूरा आपको एकदम एक दिन में सबका सब पूरा का पूरा तो नहीं आ जाएगा, बट एज आई सेड आपको अगर ये फ्री में मिल रहा है तो जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज नहीं, इसका नॉलेज लेने के लिए यू कैन ट्राई। जैसे मैंने बोला, मैं ये डेटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, क्या होता है कैसे होता है सब देखिए आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे और एक ऐड करूंगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ एक और ऐड करेंगे, टाइम सीरीज हमको चाहिए। तो चलो मैं अगर लाइन, अच्छा ये रिप्लेस हो गया, मैं देखो कंट्रोल जेड से भी हो जाता है, देखो कंट्रोल जेड करोगे, देखो कंट्रोल जेड, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नया ऐड करना है तो यहाँ पे रैंडमली इधर क्लिक कीजिए और तब जाके, ठीक है, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, तब जाके आप मुझे लेना है लाइन, तो लाइन पे क्लिक कीजिए, आ गया लाइन आपका, ठीक है। सिलेक्ट एंड ड्रैग फील्ड टू पॉपुलेट द विजुअल्स। तो मैं अभी इनकी भी इंटरेक्शन अपन देख सकते हैं, लाइन को मुझे लेना है तो मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। तो लेट से अगर आपको कोई आपका मैनेजर पूछता है, या लेट से अगर इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको चांस मिला इसमें वर्क करने का, ठीक है, पावर बीआई के टूल पे, भाई आपको आता है क्या, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रही पावर बीआई का टूल, और आपको कंपनी ने पूछा कि भाई मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके दो, और रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में ऐसा होना चाहिए कि जो भी सेल्स हुए, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट के सेल्स हुए, कौन से मंथ में कितने हुए थे, और उसका सेल्स का जो भी बेचने का जो है वो कम हुआ ज्यादा हुआ, वो अगर उनको देखना है, कंपनी को अगर देखना है वो सब चीजें, तो फिर व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, ठीक है। और ये जो है इसको आप देखो, ये ऊपर नीचे सब है, लेकिन अपना जो यूआई है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पे आप कॉम्प्रेस्ड वर्जन में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन है, ठीक है। नो वरीज, बट यू कैन एक्सप्लोर एट योर साइड और गो। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि भाई मंथ वाइज इसका सेलिंग कैसे हुआ। तो जनरली कैन एनीवन टेल मी कि लाइन चार्ट जनरली कब यूज करते हैं हम, लाइन चार्ट? यस गाइस, क्योंकि अगर आपको कोई पूछेगा मुझे टाइम सीरीज का मतलब ऐसे डेट वाइज जनरेट करके दो, तो आप उस टाइम पे क्या सोचोगे? तो कैन एनीवन टेल मी कि लाइन चार्ट कब यूज होता है? कोई भी चीज में, हाँ बोलो, बोलिए ना। हाँ, कोई भी चीज मतलब वो आइदर इंक्रीज हुई या डिक्रीज, अगर यहाँ पे हम लोग सेल्स टर्म में ले गए तो सेल्स टर्म उसका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, उसके लिए करेक्ट। तो इसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं, टाइम सीरीज डेटा, राइट। इसको क्या बोलते हैं फिर, टाइम सीरीज। जैसे कि आपने स्टॉक्स में देखा होगा, तो स्टॉक्स में ये अप एंड डाउन होते रहता है। तो जनरली सेल्स का कैसे देखो, मतलब ये सेल्स डेटा में जनरली पूछते हैं, देखो हायर लेवल में अपना प्रोडक्ट का क्या चल रहा है भाई, कैसे सेल हो रहा है और कैसे जा रहा है, ये हायर लेवल पे। इसलिए मैंने बोला पावर बीआई इज वेरी हेल्पफुल टूल फॉर लाइक ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस गाइस, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना। इफ यू आर गोइंग टू अटेंड सम लाइक जो भी बिजनेस एनालिस्ट के अगर आप इंटरव्यू मतलब शुरू कर दोगे, या एनालिसिस का या एनालिटिकल जो भी जॉब है,
तो डेटा ड्रिवन डिसीजन ये वर्ड आप ज्यादा यूज करने का, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल। बिकॉज देखो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, टॉप हायर लेवल पे ना जो भी डिसीजंस होते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन द डेटा। जो भी करना है, मतलब कुछ नया लेट से कोई नया स्कीम अप्लाई करना है या कुछ नया लर्निंग का, लेट से अगर अपने एम्प्लॉय सेल्स के एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहे तो भाई उनके लिए कुछ कोर्स लॉन्च करना है, क्या क्या वो अपनी सेल्स की मास्टरी बढ़ा देंगे प्रोडक्ट का। ऐसे इस टाइप के डेटा ड्रिवन डिसीजन इज टोटली बेस्ड ऑन द डेटा। जो भी डेटा है उसी के बेसिस पे होते हैं। तो ये लोग किन पे रिलाई करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कैसे क्या नया डिसीजन, कुछ इंप्लीमेंट करना है और कुछ नया बढ़ाना है बिजनेस को, टोटली बेस्ड ऑन द डेटा ड्रिवन डिसीजन। ठीक है, तो फॉर दैट अगर ये लाइन चार्ट जैसे मोइन ने भी बताया और यू गाइस नो कि लाइन चार्ट जब भी मतलब हमको वी कैन से एक टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा लेना है या डेट ड्रिवन डेटा लेना है, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं डेट को लेता हूं इस पे एक्स एक्सिस पे। तो जैसे ही एक्स एक्सिस पे मैंने लिया, आपको दिख रहा है बिकॉज डेट में क्या था, ईयर था, क्वार्टर, मंथ एंड डे, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। हाँ, ऑटोमेटिकली इसलिए ले लिया। और जो भी डेटा था, डेटा फॉर्मेट, सी गाइस यहाँ पे एक बार का इसको देखो अच्छे से, मैंने जब बाकी को कॉलम्स लिए थे ये लिया, ये नहीं था वहां पे, बट दिस फॉर्मेट इज लाइक दैट, द डेट फॉर्मेट इज दैट कि उस पे ये दिस इज वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ फिर एक अमाउंट लेता हूँ, मतलब डेट वाइज कितना सेल हुआ है, तो हायर लेवल डिसीजन देख रहे हैं ना। अच्छा, तो आपको यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है गाइस, कुछ नहीं, एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है, तो ये बिंदु से कुछ आपको पता चल रहा है क्या है यार, राइट। तो इसमें हमने तो लाइन चार्ट लिया था और दिख रहा है भाई एक बिंदु, तो इससे क्या हम डिसीजन मेक कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे इज देयर एनी डिफरेंस, ये ग्राफ में और ये ग्राफ में क्या डिफरेंस है? यस, कैन एनीबॉडी सी द डिफरेंस? और कुछ बता सकता है कि भाई ये बिंदु को कैसे अपन क्या करेंगे बिंदु को? यस, डू यू सी एनी डिफरेंस हियर इन दिस ग्राफ एंड इन दिस चार्ट? वी कैन सी चार्ट एंड चार्ट, क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये इसको छोड़िए, यहाँ पे टूल्स दिए, देखो ये जो टूल्स दिख रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, मे बी आपको छोटा दिख रहा होगा इसलिए वो पता नहीं चल रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बड़ा किया, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक्सपांड ऑल डाउन वन लाइन इन द हायरार्की, मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो, और फिर से इस पे क्लिक किया, सी वो जो दिख रहा था ना वो जूम आउट और जूम इन मोड था, लेकिन जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया आपको देखो दिखना शुरू हो गया। और गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ दिखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो देखो क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे डिसीजन बनते हैं। देखो यहाँ पे ये सेल हुआ था जनवरी में, दैट इज अबो 90-100 के, वी कैन से 90-100,000 इतना सेल हुआ जनवरी में, तो एकदम से फटाक से ये फरवरी में इतना कम क्यों हो सकता है, क्यों हुआ? तो भाई अगर आपको आपके मैनेजर ने पूछा या जो भी बिजनेस डिसीजन जो भी ले रहे हैं उन्होंने पूछा कि भाई इसका मुझे बताओ, यहाँ पे एकदम सडनली क्यों आया था, क्यों फेल हुआ था, और यहाँ पे भी सडनली फेल क्यों हुआ? तो फिर और मे बी ये आपने दिखा दिया तो वो कुछ तो सोचेंगे ना, यार यहाँ पे अप्रैल में बढ़ गया सेल और जून में देखो सबसे मतलब टॉप हो गया, तो ऐसे क्या अप्रैल में फेल हुआ, मतलब कम हो गया, फरवरी में सेल कम हो गया, तो व्हाट इज द रीजन? यस गाइस, तो देखो पावर बीआई आपको ये भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जस्ट लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एनालाइज कीजिए, देखो एक्सप्लेन द डिक्रीज। सी जो हम कंक्लूजन वहां पे मैनुअली लिखते थे और ऑब्जर्व करके देखते थे, वो सब चीजें पावर बीआई ने आपको प्रोवाइड करके दी है, सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, एंड दिस इज वेरी लाइक एंड दैट्स व्हाई वी से, तो ये क्या एक दिन में बना हुआ टूल नहीं गाइस, ये पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों को लगा के, एक्सपर्टीज को लगा के एक पूरा टूल बनाया है। तो ये सब करने में उनको तो काफी टाइम लगा, लेकिन दिस एक प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बहुत यूज स्ट्रांग है। बट जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, आप भी कर सकते हो ये सब चीजें। देखो जैसे अभी अमूल ने भी बोला, ये क्या है, सब क्लिक इवेंट है, ये पॉपुलेट, ये सब जावास्क्रिप्ट में हैंडल किया है यूआई का, तो यू नो इट बेटर, जावा जिनको पता है, जावास्क्रिप्ट पता है या हैंडलिंग पता है सब। तो बैकग्राउंड में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो आप क्या अंडरस्टैंड करोगे कि भाई हाँ, इस पे क्लिक करने के बाद ओवरव्यू, और ओवरव्यू में जो बैकग्राउंड में हुआ है वो सब चीजें। तो ये दो चीजें आप समझिए। पहले तो हम क्या सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं सीख रहे, हम पूरा मशीन लर्निंग और एआई जर्नी सीख रहे, बराबर। ये अगर सिर्फ पावर बीआई सीखना है तो यू कैन कम टू मी, फिर उसके लिए 4-5 महीने का अलग से कोर्स और अलग से उसका सब रहेगा, तो पूरा का पूरा पावर बीआई एक्सप्लोर करेंगे। बट देखो ये यहाँ पे मैं रुकूंगा अभी थोड़ा, और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हर एक को होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। आप पावर बीआई अगर आप सीख रहे हो तो सी लर्निंग इज ऑलवेज पावर, तो ये अगर सब सीख गए तो आप ही रिपोर्ट जनरेट करके आपके हायर मैनेजर को या ऑर्गेनाइजेशन को जो भी डेटा ड्रिवन डिसीजन लोगे वो सब आप कर सकते हो। इसका छोटा सा वर्जन हमने कोडिंग में देख लिया, सब हम करते हैं, ठीक है। एंड गाइज, तो दिस इज द टूल, ठीक है, और इसको हर महीने ऑर्गेनाइजेशन इसको पे करता है। तो कुछ जो स्टार्टअप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे लेवल के, उनको तो यार ये पे करना इतना पॉसिबल नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, तो वो वाली चीजें वो उसके साथ जाते हैं, चलो भाई ईडीए कर लेंगे, कुछ जनरेट कर लेंगे और दिखा देंगे, डैशबोर्ड जनरेट कर लेंगे।
ठीक है। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन तो वो सब काम और वो सब चीजें फास्ट करने के लिए वो ये रेडीमेड टूल यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। यहाँ पे डेटा स्ट्रीमिंग होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें एसक्यूएल लेवल पे। अगर आपका पेड वर्जन है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ कनेक्ट होगा, जो अलग अलग आपके डेटा के टाइप से एक्सक्यूएल सर्वर वगैरह वो सब कनेक्ट होके फिर आप यू कैन स्ट्रीमिंग कर सकते हो, डेटा ड्रिवन डिसीजन सब। तो जब मैं बोल रहा था एनालिसिस, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, एनालाइज कीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो यहाँ पे सी आपको पूरा एनालिसिस आ गया। 1 सेकंड, इफ देयर इज बैकग्राउंड नॉइज जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अभी तुम्हें सामने मेरे क्लास चल रही है। अरे शांत बसा। तू पण जा। Sorry for the background. Guys, are you getting the background noise? Yes. Okay. Sorry for that. All right. तो here you can clearly see explanation and सब आपको ये रेडीमेड मिल जाता है, ठीक है गाइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई क्यों ये हुआ, जो भी आपका सम अमाउंट है ना यहाँ पे ज्यादा था देखो इस क्वार्टर में, और उसके बाद यू कैन सी ये धीरे धीरे कंट्री वाइज ये डिक्रीज हुआ। दिस इज जस्ट दे हैव लाइक ये पावर बीआई ने आपको एक थोड़ा एनालिसिस दिया है, बट देखो यहाँ पे पूरा आप लिख के पूरा सब आया है। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मेक, ये किसने कहाँ पे किससे गलत हो गया, कौन से प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये सब आपको दिखता है, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटी गाइस, ये आपका काफी टाइम सेव कर देता है। एंड दैट्स व्हाई कभी कभी मतलब बहुत बार जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ठीक है इट्स ओके कॉस्ट, बट उनका अगर करोड़ों में बिजनेस है और ये अगर महीने के देने पड़ते 1-2 लाख, तो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई दे गो विद दिस टूल, और वो बोलते हैं कि चलो भाई पावर बीआई का जो भी जिसको आता है पावर बीआई आ जाओ, हमको सिर्फ ये जनरेट करके हमको दे दो, ठीक है। तो ये एक दिन में पावर बीआई में पूरा का पूरा तो नहीं सिखा सकता, बट आपको एक ग्लिम्स और आपको एक आइडिया दे दिया कि क्या क्या कर सकते हो आप पावर बीआई में, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू यूजिंग पावर बीआई, ठीक है गाइस। तो ओके 1 सेकंड, आपको रिपोर्ट अगर पब्लिश करना है तो यहाँ पे आप ये सब देखिए, आप नेविगेट कीजिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इंस्टॉल कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक सम रिपोर्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। हर एक चीज का इंटरेक्शंस में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, उसके अगेंस्ट यहाँ पे सब आपको, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंटरैक्टिव एंड वेरी यूजफुल गाइस। तो एकदम बढ़िया से, और यहाँ पे ना आप क्या करते हो, पब्लिश करते हो। अगर आपका पेड वर्जन है ना, पेड, तो आप पब्लिश करके ऑनलाइन रिपोर्ट भी पब्लिश कर सकते हो, जिससे जो आपके हायर अथॉरिटी वो देख पाए, ठीक है, वो सब समझ पाए ये सब चीजों को। आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट है, मॉडलिंग, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे। एंड यू कैन नेविगेट, यू कैन प्ले विद दिस, मॉडलिंग है आपके पास, ऑप्टिमाइज है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला उसको शेयर करने का ऑप्शन है, ठीक है। होम में जाओ और पब्लिश कीजिए, आपके जो हायर लेवल है उनके साथ आप शेयर कीजिए उसको। ट्रांसफॉर्म द डेटा, अगर ये ट्रांसफॉर्म कब यूज करते हैं, जब आपके पास जैसे मैंने बोला डेटा में अगर ब्लैंक वैल्यूज आ जाते हैं तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। 1 लेक वाला पार्ट है, तो डेटा लेक देखो, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा आपको एक ये चीजें बताता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म और सब चीजें कैसे यूज होती है, ठीक है। तो लेट मी गो टू आवर व्हाइट बोर्ड, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड, ये वाला पार्ट। अच्छा, व्हाइट बोर्ड भी ब्लैक दिख रहा है, इसको व्हाइट कैसे करेंगे, ठीक है, व्हाइट हो गया। तो गाइज थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो डेटा इंजीनियरिंग में 2 कंसेप्ट है, एक है ETL और एक है ELT, ठीक है, ETL और ELT, ठीक है। तो ETL होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब जैसे डेटा इंजीनियरिंग का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था, डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, अलग अलग सोर्स से वो पाइपलाइन बनाते हैं और वो लेके आते हैं डेटा सर्वर, और डेटा लेक करके कंसेप्ट है, डेल्टा लेक भी है। तो ये डेटा लेक में अगर आपको डायरेक्ट डालना है तो देखो ये चीज और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ये होता है आपको डेटा सर्वर के साथ, मतलब डेटा सर्वर में स्ट्रक्चर डेटा जाता है, और डेटा लेक में जो भी जैसा भी डेटा है सब आके पटक देते हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाई एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का जो टी का मीनिंग है ना, वो वही जो हमने देखा कि प्री प्रोसेसिंग, क्लीन डेटा, ये सब चीजें करना। बट डेटा लेक का कैसा है, साइज ज्यादा होता है, बिलियन ट्रिलियन जो रिकॉर्ड्स आते हैं ना आपके कंटिन्यूअसली। तो डेटा लेक का मतलब क्या होता है, लेक आपको पता है बहुत सारा स्टोरेज होता है लेक में, तो वो स्टोरेज यहाँ पे मिलता है। तो वेयर द डेटा का स्ट्रक्चर इज नॉट कंसर्न, यू कैन यूज डेटा लेक, एंड वेयर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो ये पाइपलाइन होती है ETL, और यू विल यूज द डेटा इंजीनियर्स यूज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, दैट इज डेटा सर्वर, ठीक है। तो ये डेल्टा जो पार्ट है वो Azure और AWS वो प्रोवाइड करते हैं हमको, जहाँ पे हम प्रॉपर ये पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। तो ये सब पेड सर्विसेज यूज होती है गाइस, क्लाउड सर्विसेज जिसको बोलते हैं। तो क्लाउड के साथ जब जाओगे तो बोलते हैं ना, आपको Azure का एक्सपीरियंस है क्या, AWS में आपने पाइपलाइन बनाई है क्या, ये डेटा इंजीनियर्स के लिए। तो जैसे मैंने बोला, डेटा इंजीनियर्स इज ऑल्सो अ बिग एंड वेरी वास्ट वाला पार्ट है। जिसको इंटरेस्ट है डेटा इंजीनियरिंग, तो यू कैन कम, फिर इसको सीखने के लिए 4 से 6 महीने का जो पार्ट है उसमें पूरे सब मॉड्यूल्स है। तो यू कैन इवन इफ लाइक learning, जिनको interested है, you can come, I will teach you data engineering also, but that is very separate. This course is properly for our data scientist, और जो भी हम कर रहे हैं अभी AI वगैरह मॉडलिंग वो सब है।
तो देखो मैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ गाइस, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ट्रेंडिंग क्या क्या है, डेटा इंजीनियर्स की हमेशा जरूरत रहने वाली है, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा डेटा साइंस, इट इज ऑल्सो ट्रेंडिंग, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। एंड फिर ये जो एनालिटिक्स, जो एनालिसिस जो लोग करते हैं ना, बीए बिजनेस, ये सब ये टूल यूज करते हैं, कौन से वाले, जैसे कि पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया, ठीक है। तो वो चीज जो, जैसे भी देखो शुरू में अगर आपने डेटा मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये सब साइकिल आपको पता है, तो गाइस क्या होता था, डेवलपर्स होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, वो कुछ डेवलप करते थे, फिर टेस्टर लोग होते थे, क्यूए, जो इसको टेस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद टेस्टर हो गए, डेवलपर हो गए, और ऐसा चलता था। वो बीए जो रहते थे, तो बीए दो टाइप के, मतलब वो जो बिजनेस लेके आते थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब है, नॉट थे बट दे आर डूइंग दिस थिंग्स। तो टेस्टिंग कैसे होता है, टेस्टिंग वैसे थोड़ा सा आपको अगर पावर बीआई में मतलब ये सब यूआई यूज करना है, और यूआई में ये सब रिपोर्टिंग जनरेट करने का जिसको एक्सपीरियंस है, तो अगर समवन इज आस्किंग यू ना पावर बीआई का कुछ नॉलेज, तो आप नहीं बोलने का, देखो मैंने आपको वेज बता दिया, आप जाओ पावर बीआई डाउनलोड करो, प्रोडक्ट डेस्कटॉप पे लेके आओ, नहीं बोलने का नहीं। जब अगर हमने ईडीए सीखा है, तो ये दिस इज नॉट अ बिग डील गाइस, एंड डोंट से नो एनी। कभी भी कोई भी आपको पूछता है कि भाई ये आपको आता है क्या, नहीं बोलने का, आई नो इट, ऐसा बोलने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। हाँ आई नो इट, मैंने किया है, ऐसा बोलने का और चलने का। देखो मैं आपको बोलता हूँ, दिस इज टोटली गेम ऑफ माइंड सेट है, ठीक है। अगर आपने बोल भी दिया और नहीं पता, आपने नहीं किया है, ठीक है ना, इट्स ओके, किया है, पता है, इतना बोलने का, नहीं आया छोड़ देने का। बाद में आप खुद से ही क्या करोगे, यार मैंने बोला नहीं आया, जाके आप एक्सप्लोर करोगे, तो दैट इज जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ योर माइंड। तो हमेशा आप कभी भी नहीं बोलने का, ठीक है, पता है बोलने का, किया है, मैंने थोड़ा सा किया, ऐसा बोलने का, आगे बढ़ने का, ठीक है गाइस। क्योंकि देखो माइंड सेट होता है, आपने कभी कभी देखा होगा आपके दोस्त, यार कुछ मतलब इसने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिया, वो लग गया, सब सोच का परिणाम है। वो क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, निगेटिव सोचोगे, नहीं यार मुझे तो नहीं आता, फिर मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, इंटरव्यू तो कल है, लेकिन मतलब यू आर वर्किंग गाइस, मे बी आपको अगर स्विच करना है तो उस टाइम पे भी होता है कि यार इंटरव्यू है अभी दूसरी कंपनी का, मेरे को स्विच मारना है, लेकिन कल है तो मैंने यार कुछ प्रिपेयर नहीं किया, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इट्स ओके ना, जस्ट फेस इसलिए गाइस क्योंकि वो फ्री में आपको कोई बंदा आपके साथ इंटरेक्शन करने वाला है, फ्री में, ठीक है। आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, पूरा अलग बात है, ठीक है। फ्री में कोई इंटरेक्शन करने वाला है, आपको कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज या कुछ किसी चीज के बारे में पूछने वाला है क्वेश्चंस, तो यू फेस दैट सिचुएशन, फेल तो फेल। देखो ये इंटरव्यू का बोल रहा हूं मैं, आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई पूछता है भाई एआई पे काम करेगा, तो फिर आप बोलोगे नहीं यार मैं एआई का मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, मे बी मेरे को व्हाई, इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी ना, डोंट से नो, दैट इज माय इंटेंस गाइस, बिकॉज ऑल इज गेम ऑफ दिस माइंडसेट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए कभी भी ना नहीं बोलने का। कोई बोलेगा भाई डेटा इंजीनियरिंग में काम करेगा, हाँ बोलने का, हाँ ठीक है। आप बोलोगे नहीं यार दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं कैसे कर लूँ। सी मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरू से मैं आपको यही बताते आया हूँ गाइस, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, आपने जो भी कुछ किया है और यहाँ पे आ गए हो, और आप बोलोगे कि मेरे लिए टफ है, ये आप ही पैदा करो उस सिचुएशन को। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता, आपका ब्रेन है बस वही पावरफुल है। अगर आप ही बोलोगे कि नहीं यार मैं इतना शार्प नहीं हूँ डेवलपमेंट में या कोडिंग में, नहीं मेरे को नहीं जम सकता, ये आपका माइंड है बस, वो आपको नहीं बोल रहा है। दिस इज सम काइंड ऑफ माइंडसेट मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस। मे बी आप बोलोगे कि उसकी जरूरत नहीं है, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है जिसकी कभी कभी अगर कोई समझता है कि यार व्हाट वी आर लर्निंग, और मुझे मतलब ये बंदा क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, एट द एंड यही मैटर करता है गाइस, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो, ये फिल्टर्स भी आप देख लो, जैसे आप यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करोगे, सी जनवरी फरवरी, जैसे हमने फिल्टर्स क्वेरी का जो सिलेक्ट देखा था ना, क्वेरी, वो सब चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। सी यहाँ पे फिल्टर्स में जुलाई मैंने ले लिया, फिर जनवरी या सिलेक्ट ऑल मैं करूंगा तो ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल है, जनवरी का देखूंगा तो यहाँ पे जनवरी में क्या क्या मिल रहा है। तो गाइस आई होप ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ठीक है पावर बीआई का तो जैसे आपने सिलेबस में भी नहीं था, ठीक है। जस्ट मैंने ये इसलिए आपके सामने किया कि एक रिक्वेस्ट थी इसलिए भाई चलो पावर बीआई, क्योंकि मेरे पहले बैच में मैंने पावर बीआई के बारे में कुछ नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, आवर सिलेबस इज टोटली डेटा साइंस, उसमें मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, फिर एआई, वो सब चीजें। और लर्निंग जिसने अपने ब्रेन को ओपन किया ना, उसके लिए लर्निंग बहुत बड़ा जर्नी गाइस, लर्निंग इज वेरी बिग जर्नी। तो सो काफी इंटरेस्टिंग है। आप, मैं वही बोल रहा हूँ, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। कभी भी आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, और लर्निंग को कभी ना मत बोलो। और मैं यही बोलूंगा कि मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो, ये सब चीजें ये तो होती रहेगी। तो गाइज हमारा जो अभी नेक्स्ट सेशन होगा वो कंप्लीटली अपना मशीन लर्निंग, जो हम शुरू करने वाले मशीन लर्निंग हमारे आने वाले इसमें, ठीक है, मशीन लर्निंग अपना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें ऐसे भी है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी भी है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी नए नए हर एक घंटे में, एक दो दिन में नए नए चीजें आ रही, जेन एआई आ रहा है, उसके बाद नई नई, आप अगर यूट्यूब या इधर उधर न्यूज में देखोगे तो यार लोग बोलते हैं कि यार जेन एआई पढ़ाओ, फिर ये पढ़ाओ, फिर जो एजेंटिक फ्रेमवर्क पढ़ाओ। सी मैं आपको बोल रहा हूँ उसका भी टाइम आएगा, वो भी पढ़ेंगे। जिसको फंडामेंटल्स और कोर पता है ना, वो कभी भी फेल नहीं जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ। डायरेक्ट दुनिया भाग रही है, अभी जेन एआई आ गया पटकन से, वो फटाक से काम भी करके दे रहा है, तो बंदे ज्यादा फीस देके जेन एआई सीख रहे, सीखो।
बट देखो अल्टीमेटली जो फंडामेंटल है ना, उसी के बेस पे ये सब जेन एआई एजेंटिक ये सब बन रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दौर था 2018 और 2030 जो 23, तो उसमें ये सब बेसिक हो चुका है, डेवलप हो चुका है, और वो हुआ उसी के रीजन से ये आगे ये सब चैट जीपीटी और जेन एआई ये शुरू हो गया। बट गाइस जो कोर है ना, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसका जो इंटरेस्ट है वो जाने मत दो। मैं वही बोल रहा हूँ, एक दौर मैं बोल रहा हूँ 3-4 महीने में आप सीख जाओगे, सीखने के बाद तो जेन एआई एजेंटिक ये तो हम करने ही वाले एट द एंड, बट इंटरेस्ट आप कम मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग है ना ये बोरिंग लगने लगता है, यार ये क्या सीख रहे हैं ये मशीन, बट एट द एंड क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जेन एआई के टूल यूज करेगी, सब करेगी, जब वो कॉस्टिंग बढ़ा देंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी पता है कि यार ये अपने पास होना चाहिए ऐसा टूल, या ऐसी चीजें अपने खुद की होनी चाहिए, और वो बोलेंगी डेवलपर्स की नई टीम बनाएगी, बोलेगी भाई तू ये बना, तो उस टाइम पे ये बना मतलब इतना इजी नहीं, जिसको फंडामेंटल पता है ना वही उस पर काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दैट इज द फ्यूचर गाइस, बट इट्स ओके। आई होप आपका इंटरेस्ट बना रहे, एंड देन एज आई सेड कि हम नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है अपना, वो होने वाला है अपना मशीन लर्निंग का मॉड्यूल 4 शुरू होने वाला है गाइस। बी कंसिस्टेंट। तो आप जो बोले वो सही है, वो YouTube पे देखेगा ना तो वो अलग अलग चीजें बहुत मतलब सीखने क्या क्या सीखेगा। अभी ये जो दो है ना, ये इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है हर एक को, मैं बताता हूँ ना, हर एक को, इवन जो वो गाइस भी जो डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, वो खुद में कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सही में यार मतलब क्या करे, ये करे वो करे। सी गाइस मैं वही बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा एक कोर लेवल का समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मत सीखो, मैं बोल रहा हूँ सीखो उसको, वो भी अच्छी चीज और हम करने वाले एट द एंड। मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ कि वो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको स्किप नहीं करेंगे, बट उसके भागदौड़ में स्किप क्या हो रहा है, हर मतलब बहुत सारे लोगों का स्किप क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल स्किप हो रहा है। वो सिर्फ एप्लीकेशन देख के वहां पे भाग रहे हैं। भाई आप फंडामेंटल तो क्लियर करो एक बार, और तब जाके वहां पे आप करो वो सब चीजें, ठीक है, बट फंडामेंटल को आप इग्नोर मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ, कोर कंसेप्ट को इग्नोर मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली आप आ जाके ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगा अगर जो लोग डायरेक्ट जेन एआई सीख रहे हैं, और जब 2 साल में जब वो जाएंगे और बोलेंगे भाई ये डेवलप करो, वो बोलेगा कि यार ये चीज क्या करता है, फिर वो बैक इंजीनियरिंग मतलब बैक में आएगा, फिर उसका वो बेसिक सीखना शुरू करेगा। हाँ यार इसका मतलब ये था, फिर इसके लिए ये मशीन लर्निंग का मॉडल यूज होता है, ये बैगिंग है, ये बूस्टिंग है, ये पाइपलाइन डेवलपमेंट है, वो बैक जाएगा, और उसका जो टाइम जाने वाला है ना उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा जाएगा। देखो ये 3 महीने आपको यहाँ पे डेडिकेटेडली आप दोगे ना, तो आने वाले फ्यूचर में आपको फिर से वो 4-5-6 महीने वापस देने की जरूरत नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग, मैं ऑलरेडी 6 साल हो गए इस फील्ड में, और मुझे पता है शुरू कहाँ से हुआ था और अभी कहाँ पे। तो जो शुरू हुआ था ना वो बेस है, उसको आप स्किप मत करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू। सो डोंट लूज योर होप्स, डोंट बी डीमोटिवेटेड। मैं एक बात करता हूँ आपको, एक थोड़ा टाइम आधा घंटा आप जेन एआई सीखो, एजेंटिक एआई सीखो साइड बाय साइड, बट जो कोर है उसको इग्नोर मत करो, दैट इज माय टीचिंग। अभी हम लोग अपना जो कोर्स चालू है ना कंप्लीट, हाँ ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग का जॉब टाइटल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट एक हो सकता है, एआई इंजीनियर आपका AI जॉब टाइटल रहेगा, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, मशीन Okay. लर्निंग इंजीनियर। आप समझ रहे हो, इंजीनियर मतलब द वन हु बिल्ड्स द प्रोडक्ट्स, द वन हु नो कि हाउ दिस थिंग्स वर्क। और मैं बोलता हूँ आपको, जो जेन एआई एजेंटिक एआई सीख के जाते हैं ना, वो इंजीनियर का टाइटल भी लगा देंगे ना, बट दे आर नॉट एक्चुअल इंजीनियर। मैं वही बोल रहा हूँ, बिकॉज दे जस्ट नो द टॉप ऑफ इट। भाई टॉप में क्या चल रहा है, उसका एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, बस वो पता है उनको, अंदर का पता नहीं। तो अभी जैसे कि अपनी कंपनी ओके सिस्को, तो उसके अंदर अभी हम लोग के डेटा है वो मतलब हाईली कॉन्फिडेंशियल से हम लोग मॉडल्स पे किधर भी डाल नहीं सकते, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे, ओके। तो जब हम लोग का एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हाँ। तो क्या हम लोग कैपेबल रहेंगे कि हम लोग खुद का एक मॉडल बना सके जो चैट जीपीटी जैसा काम करे, और हम लोग का डेटा भी प्राइवेसी रहे पूरा, मतलब वो अंदर ही रहे सिस्टम में? यस यू कैन। तो अभी जो नेक्स्ट मॉड्यूल अपना आने वाला है ना, अभी मशीन लर्निंग, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि खुद का मॉडल कैसे डाउन आप सेव करते हो, डिप्लॉय कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो, ये सब चीजें मैं वहां पे आपको बताने वाला हूँ। मशीन जो मॉडल बिल्डिंग है ना, खुद के मॉडल कैसे सेव होते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव आता है, तो यस प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, तो उस टाइम पे हम ये सिक्योर डेटा, एंड इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्यों फोकस करती है, फिर नया एक टीम क्यों बनाती है कि भाई ये सब चीजें अपने इसमें होनी चाहिए। तो दैट विल बी ऑलवेज इन वी कैन से नीड। तो जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है मशीन लर्निंग का, प्लीज बी कंसिस्टेंट, आई विल टेल यू कि मशीन लर्निंग मॉडल्स बनते कैसे हैं, ठीक है, और डिप्लॉय कैसे होते हैं, यूज कैसे होते हैं, ठीक है गाइस। तो धीरे धीरे फिर ये होके फिर जो मेथोडोलॉजीज है उसका एक्यूरेसी इंप्रूव करना, उसके एल्गोरिदम्स, ये सब चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले आगे। उसके बाद फिर एलएलएम्स है, एलएलएम्स कैसे बिल्ड होते हैं, सब चीजें गाइस, बट जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस दैट इज द ओनली थिंग। सो आई होप इन टुडेज सेशन वी हैव कवर्ड अ लॉट। आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग। तो आई होप गाइस, बीच बीच में कभी कभी मैं थोड़ा सा जो इंटेंशन मेरा आ जाता है, दैट इज जस्ट फॉर मोटिवेटिंग, एंड तो आई होप कि आपको उसका ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैं कुछ लेक्चर या कुछ प्रवचन दे रहा हूँ आपको, बट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। We will meet in our next session, which is on module 4 machine learning. Thank you. Thank you guys, thanks.
कि